A lot of people have a dream to be a successful founder. Today we have a person. He built the largest perfume brand. When was it that you thought ki I will do my own brand now? Enough of working for someone else's brand. अपना बनाना है. मैंने सोचा यार why don't we let's say look at something wherein कुछ अलग करते हैं, कुछ दुनिया से अलग करते हैं. We have done enough and more. ये कैसे बनाया जाता है मुझे? If you were to break it down. इंडिया में सारे लोग परफ्यूम ट्राई करें. That was a simple objective. सब लोग डिओड्रेंट यूज़ करते थे. हम 25% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे. We'll become India's first pure parfum brand. And At Bella Vita, I think you took it from $1.5 crore to about 170 crore. प्रोडक्ट सही होना चाहिए. इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन अ प्रोडक्ट तो आप पहला सेल तो ला दोगे, आप रिपीट नहीं ले पाओगे. आप 50% आपका प्रोडक्ट करेगा, 50% मार्केटिंग करेगी. Somebody is a new brand, उसको 10 लाख रुपए दिए जाए, वो पहले 1 लाख किस पे लगाएगा? आई थिंक प्रोडक्ट. ये बहुत रेडिकल स्टेटमेंट बोल रहे हो आप. द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया इज इंडियन कंज्यूमर फटाफट जो वेस्ट में कल्चर चल रहा होता है ना, फटाफट लेता है. पर नाइट जब आप रात को सो रहे होगे और आपको लगे यार ये चलेगा नहीं. बहुत बार होता है. इन इंडिया यू गो आउट एजुकेटिंग द कंज्यूमर अबाउट समथिंग न्यू. प्रोडक्ट में दम होना चाहिए. until unless you as a brand owner are confident on your product, don't launch that product. When we started Blably Blue, our simple objective was था कि हम पहले महीने में 6-8 लाख रुपए का धंधा करेंगे. पहले 1 करोड़ करना. पहले 1 करोड़ करना आसान है. फिर 1 करोड़ से जो 5 करोड़ या 6 करोड़ की जर्नी है वो डिफिकल्ट है. वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड. आज हमारा 99th एपिसोड शूट हो रहा है, या हो सकता है 100, आई डोंट नो. बट आज हमारे साथ बड़े इंटरेस्टिंग फाउंडर हैं. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ ड्रीम टू बी अ सक्सेसफुल फाउंडर. सक्सेसफुल फाउंडर इंडिया में क्या माना जाता है कि 100 करोड़ कर दें जी हम, 1 साल में 100 करोड़ की दिस थिंग. नाउ टुडे वी हैव अ पर्सन who has done this not once, twice. He built the largest perfume brand in India, Bella Vita, and he took it to about 2,000 crores a year. Today, he's building Blably Blue, and in less than a year, they've crossed 150 crores. That's something exceptional. Now, these are just not numbers. What goes behind means planning, marketing, product, team building, everything. What goes behind building a brand is what we are going to talk about. So if you're an entrepreneur or looking to be an entrepreneur, this podcast is for you. But before I make you meet Rajat, press the subscribe button. Okay, welcome Rajat. Thank you for being on our podcast. So first and foremost question, Blably Blue, your own brand, more than a year, more than 100 crores in turnover. And when was it that you thought ki I will do my own brand now, enough of working for someone else's brand, अपना बनाना है? ऐसा क्या हुआ and why did you take this call? No, I think it was simple. It was one fine day. To be very honest, I was actually in a very small city in Italy. Okay. It's called as Bologna. It's about 150 kilometers from Milan. So you know Italy में कैसा culture होता है, छोटे छोटे cafes along the road. And so there is one of the largest event which happens in Italy, Bologna में. It's called as Cosmoprof. So I was sitting, I was having a coffee, a regular cappuccino at 6 in the evening. तो ऐसे ही दिमाग में आया बैठे बैठे, I was having a सोच रहा था कुछ, and I ended up thinking कि यार what am I doing? Let's say I've been doing work for almost now 15 years while I have built one startup in between which was an agency, but consumer brands के लिए कभी कुछ नहीं करा. So मैंने सोचा यार why don't we let's say look at something wherein कुछ अलग करते हैं, कुछ दुनिया से अलग करते हैं. We have done enough and more in life in terms of reaching at a certain level. आप एक CXO level जब पहुंच जाते हो किसी कंपनी में तो आप पहुंचते हो, you have achieved something in life and that's why you become a CXO. तो कहीं ना कहीं दिमाग में always था कि यार okay, let's probably go to that route wherein we end up starting another venture in consumer brands. And that's when on that day, in that evening, I called 2 of my co-founders, जो मेरे दोनों co-founders हैं, Durgesh and Kushal. Both of them were my colleagues back at Bella Vita. And I called them in the evening and I said कि यार कुछ करना है. तो their simple was कि यार क्या करना है. तो उनको लगा मैं कुछ कहीं होश खो के बैठा हूँ अपने जीवन में कि इटली में बैठा हूँ मैं
बट पहले उन्होंने पूछा, मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नॉर्मल कॉफ़ी पी है, बस मैं बैठा हूँ एंड आई एम रियलाइजिंग ऑन दैट डे आई लिटरली माई होटल वॉज गुड 3 किलोमीटर्स अवे और इटली की सड़कें हवा अच्छी होती है, तो मैंने टीम को बोला, मैंने कहा यू गाइज गो ऑन, आई विल वॉक एंड कम डाउन टू द होटल। मैंने लिटरली वीडियो कॉल करा इन दोनों को और वीडियो कॉल करते करते आई बेसिकली वॉक टूवर्ड्स दी होटल में करते हुए गया एंड सेट कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है एंड आई एम थिंकिंग कि यार जॉब छोड़ते हैं, अपना स्टार्टअप डालते हैं, बहुत हो गया, लेट्स से काम कर लिया एंड नाउ लेट्स बिल्ड समथिंग फॉर आर्स एज आर सेल्फ, कि जहाँ आइडेंटिटी मिले, लेट्स से हु इज़ रजत, हु इज़ कुशल, हु इज़ दुर्गेश एंड वो कीड़ा तो था ही क्योंकि एक बिजनेस वी वर क्रिएटिंग अ लार्जर बिजनेस बैक देन। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, दे सेड कि ठीक है तू वापस आ जा एंड देन वी सिट एंड वी विल हैव अ चैट। तो मैंने कहा नहीं, बट मैंने डिसाइड कर लिया है, यू गाइज डिसाइड नाउ, आई हैव डिसाइडेड दैट ओके आई वांट टू डू दिस, मतलब मेरे को अपना स्टार्टअप करना है एंड आई वांट टू डू इट। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तू आराम से सोच, फिर आके बात करते हैं। वाइल यू आर, लेट्स से वाइल यू आर एट अ CX लेवल, यू एंजॉय डिसेंट सैलरीज, यू हैव अ लग्जरी ऑफ लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा नहीं बट करना है तो करना है। सो इट वॉज बेसिकली अ गेम कि फ्रॉम वट एवर सैलरी यू आर अर्निंग टू ज़ीरो सैलरी इज़ वॉट यू विल गेट इन अ स्टार्टअप ऑफ योर्स। तो मैंने कहा नहीं करना है एंड दैट्स व्हेन आई केम बैक एंड आई सैट विद दीज गाइज इन द इवनिंग पोस्ट आवर ऑफिस। मैंने कन्विंस करा कैसे तैसे एंड वी सेड कि यार ओके लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट एंड वन फाइन डे ऑल ऑफ अस वेंट बैक टू आवर इन्वेस्टर्स एंड सेड कि यार वी आर रिजाइनिंग। अलग अलग टाइम फ्रेम पे करा कि यार हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ लवली ब्लू हैपेंड। सो फ्रेग्रेंस वॉज द ईजिएस्ट बिट फॉर अस क्योंकि वी हैव बीन डूइंग दैट फॉर 4 years। एक इंडिया का बहुत बड़ा लार्जर ब्रांड बना लिया। तो कहीं ना कहीं पता ही था कि यार कैसे होगा, कैसे बिल्डअप करना है, क्या गलतियाँ हमने करी हैं 4 साल में। आई थिंक इट वॉज एटलीस्ट लेट्स से वी वर हैविंग एन एडेड एडवांटेज एट आर लेवल्स। तो हमने कहा ठीक है यार करते हैं, लेट्स डू दैट थिंग एंड प्रॉब्ली क्रिएट अ बिजनेस which is let's say not competing with what we built but give an additional value add to the consumer। तो हमने बोला कि ठीक है यार वैल्यू ऐड देना है, ओके क्रिएट समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मार्केट इज डूइंग। तो मार्केट में तब EDPs और EDTs चलते थे। तो EDP EDT में क्या फ़र्क होता है कि मोस्ट ऑफ दीज हैव ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन 12 to 20% के बीच में। तो हमने कहा यार ठीक है लेट्स लॉन्च समथिंग विच इज़ डिफरेंट। सो वी एंडेड अप लॉन्चिंग ब्लाबली ब्लू विच वॉज अ प्योर परफ्यूम ब्रांड। When you say perfume has anything which has about 20% oil concentration। हमारे सारे last longer because oil concentration is heavy। So we said कि ठीक है यार हम 25% oil concentration डालेंगे, we'll become India's first pure perfume brand and that's how we ended up saying कि यार करना है, डिफरेंट करना है तो कुछ अलग ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा सेम EDP लॉन्च करके मैं बोलूँगा कि यार मेरा भी 10 घंटे चलता है परफ्यूम, तो लोग नहीं खरीदेंगे। सो that's how the journey of let's say Blably Blue happened। and वहाँ से we started working on I think मई जून में हमने थोड़ा उस पर ग्राउंड वर्क करा मई जून ऑफ 2025 लास्ट ईयर। तो जब रेजिग्नेशन दे चुके थे तो थोड़ा बहुत काम करना शुरू करा एंड जुलाई 7th को हमने बेसिकली वी एंडेड अप क्रिएटिंग द वेबसाइट एंड 11th of July onwards द फर्स्ट सेल स्टार्टेड टू हैपन रात में। तो इनफैक्ट जो पहला सेल है आज भी याद है, कुशल हु इज़ माई को-फाउंडर उसकी वाइफ का ऑर्डर था पहला। तो बिकॉज एवरीवन वाज एक्साइटेड इन फैमिली, सो सबसे पहला ऑर्डर आ गया। तो वी वर एक्साइटेड एंड देन दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ लेट्स से Blably Blue happened। Yeah। Now at Bella Vita I think you took it from 1.5 crore to about 170 crore। Yeah, 160-170 crores In a month? Yeah, in a month। That means a year कितना हो गया? 2000 करोड़। Approximately 2000 crores। हाँ, तो मतलब साल का 18 करोड़ से 2000 करोड़ आपने किया in 4 years। 3 years 6 months, 3.5 3 years 6 months। So you're particular about numbers, right? that's my role। तो number and in 1 year you've taken Blably Blue to so we now do about 15 crores a month and these numbers are net of everything, net of revenue, net of GST, net of discounts, everything net of everything, yeah, net of to you। Yeah। So 15 is about 180 crores a year। Yeah। Okay। Yeah। So now ये कैसे बनाया जाता है मुझे, if you were to break it down? Also it's as I mentioned we had an idea about the industry। हमें पता था कंज्यूमर को अब क्या चाहिए मार्केट में। Let's say while Bella Vita was gaining success in India in 2023-24
मोस्ट ऑफ द ब्रांड स्टार्टेड बिल्डिंग ब्रांड्स अराउंड दैट सेम टाइम फ्रेम। एक्चुअली उन्होंने मॉडल भी सेम पकड़ा। अब सारे ब्रांड्स देख लो उस टाइम फ्रेम में जितने भी आए, सो दे एंडेड अप लॉन्चिंग अ गिफ्ट। सारे ब्रांड सिर्फ परफ्यूम के या एनी परफ्यूम की बात करूँ तो परफ्यूम में जितने भी नए ब्रांड्स आए सबने एक ही प्रोपोजिशन पकड़ा जो बेला वीटा ने लेट्स से लॉन्च करा था, 4x20 ml जो एक पैक ऑफ 4 था, गिफ्ट सेट से ही लॉन्च करा। एवरीवन फेल्ट गिफ्टिंग बहुत बड़ा है, बेला वीटा हैज डन दैट, वी विल रिपीट दैट स्टोरी। एंड एज आई वाज मेंशनिंग कि अगर मैं सेम चीज़ करता तो मैं छोटा मोटा शेयर ऑफ पाई ले लेता, मेरा भी बिजनेस 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ महीने पे पहुंच जाता। बट एजेंडा वॉज डिफरेंट कि यार सेम नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी देर आर 10 brands who are competing in that space, why to create another brand? We said कि okay, we give something consumer a better leg, charge a little premium to it. और consumer in India, अगर मैं आपको बताऊँ तो consumer ना they don't want to shift from an X number let's say to a 3X number directly. consumer को बीच में ना step approach चाहिए होती है इंडिया में। So for example अगर सारे brands 500 की रेंज में ऑपरेट करते थे, so while I was working back at Bella Vita, simple objective was कि इंडिया में सारे लोग परफ्यूम ट्राई करें। दैट वाज अ सिंपल ऑब्जेक्टिव। सब लोग डिओड्रेंट यूज़ करते थे, एक्स का ज़माना था, डेनवर का ज़माना था, फॉग का ज़माना था, एवरीवन वाज यूजिंग डिओड्रेंट। सो वहाँ ऑब्जेक्टिव था कि लोग परफ्यूम पे शिफ्ट हो जाएं। परफ्यूम सब इम्पोर्टेड लेते थे। हाँ, या तो परफ्यूम थे नहीं, या सिर्फ 2000-3000 के परफ्यूम थे, 4000 के परफ्यूम थे, बिगर ब्रांड्स, आउटसाइड ब्रांड्स जो थे। तो ऑब्जेक्टिव था कि यार वहाँ पे परफ्यूम लगाना सीखें। यहाँ तक कि लेट्स से जो अब ये यूज़ कर रहा है उसके लिए अगला स्टेप क्या है? क्या वो 2000 पे जंप करेगा? द आंसर वॉज नो। ही नीड्स समथिंग इन बिटवीन। उसको एक स्टेप चाहिए सो दैट देन ही कैन प्रोग्रेस टू समथिंग एल्स एंड देन मे बी गो टू अ बिगर ब्रांड लाइक अ bigger brands like a YSL और a Dior और a Lancome और an X और a Y, इन bigger brands में जो 5000-10,000 के परफ्यूम्स आते हैं, परफ्यूम में चले जाते। तो our objective was simple कि यार okay, create that step and ask for a premium which is let's say 40% higher than what we typically used to operate। तो हमने कहा ठीक है यार 40% उससे ज़्यादा मांगेंगे, तो हमने बोला कि हम 700 से 1000 के बीच में प्राइसिंग रखेंगे अपने सारे प्रोडक्ट्स की। वी गिव देम अ बेटर पैकेजिंग, वी गिव देम अ बेटर प्रोडक्ट, प्योर परफ्यूम लॉन्च करेंगे, लॉन्जिविटी बढ़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन वी यूज़ वन ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन्स विच आई प्रॉब्ली टॉक अबाउट वॉज दैट कि यार परफ्यूम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? परफ्यूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग नाम तो पढ़ लेते थे बट उनको समझ नहीं आता था कि क्या स्मेल है। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट पे लिखा हुआ कि इसमें सिनेमन डेट्स हैं या नट्स हैं, तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो स्मेल कैसे करेगा। सो वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय सिंपली लॉन्चिंग आवर फर्स्ट प्रोडक्ट विच वॉज आवर डिस्कवरी सेट। तो हमने लॉन्च करा 7 ml into 6 परफ्यूम्स। तो 7 ml into 6 परफ्यूम आते थे 399 के। सो हमने कहा कि 400 रुपये का हमारा प्रोडक्ट लो, अगर आपको पसंद आया सो यू अपग्रेड टू 100 ml एंड गेट दैट 400 रुपीज़ ऑफ। तो हमारा 100 ml हमने प्राइस करा एट अबाउट 900-800, तो वो 500 मिल जाता, वो 400 से 500 की रेंज में, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, 400 से 500 की रेंज में मिल जाता था। तो आप अपग्रेड कर जाओगे। अगर आपको पसंद नहीं आए, वी विल रिफंड योर मनी बैक टू योर बैंक अकाउंट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो हमने कहा कि हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यू जस्ट नीड टू गिव अस अ कॉल कि यार ओके रजत, आई डिडंट लाइक एनी ऑफ योर परफ्यूम्स, रिफंड माई मनी। आई विल से ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेसिंग दिस ऑर्डर, आई एम रिफंडिंग योर मनी एंड दैट इज एंड ऑफ स्टोरी। मैं नहीं पूछूंगा कि आपको प्रोडक्ट क्यों नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं पूछूंगा। दिस इज रिफंड योर मनी फॉर द 7 ml। सो 400 रुपये जो आपने दिया हम आपको 400 रुपये वापस करेंगे, और प्रोडक्ट भी आप अपने पास रखो, विल नॉट पिक योर प्रोडक्ट ऑल्सो। इट वॉज अ वेरी बोल्ड मूव, किसी ब्रांड ने नहीं करा था इंडिया में। एंड डर भी लग रहा था कि लुकिंग एट हाउ इंडिया मार्केट इज, तो बहुत डर भी लगा, रख ही लेंगे लोग। हाँ, तो इन द बिगनिंग मतलब ऐसा होता था, एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज, मतलब ऑर्डर 130 पे डिलीवर हुआ, 135 पे हमारे पास कॉल आ रहा है कि सर हमें पसंद नहीं आया कोई भी, अब ऑर्डर रिफंड कर दो। तो हमने भी करा यार, जो बोला है वो करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बट वी न्यू कि यार वो कुछ ही जनता होगी ऐसी, जिस जनता को समझ आएगा उसको समझ आएगा। एंड दैट हैपेंड व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग दोज रिपीट्स, जब लोगों ने आके हमारे 100 ml पे अपग्रेड करना शुरू करा। हमारे इनिशियल कुछ मंथ्स में हमारा वो परसेंटेज था 40-42%। तो जो वापस पैसे मांगते थे नहीं, जो 40-42% जो लोग ऑटोमेटिकली अपग्रेड करते, दैट मीन 60% लोग पैसे ले लेते थे। नहीं 60, कुछ लोग, कई लोग थे जो नंबर था, लेट्स से ओके आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू, लेट्स से 100 ऑर्डर्स आए तो 40 लोग हमारे ऑर्गेनिकली कन्वर्ट हो जाते थे जो 100 ml ले लेते थे। 20 लोगों को हम कॉलिंग या व्हाट्सएप के थ्रू कन्वर्ट करवा देते एडिशनल, तो 60 लाख हो गए। जो वो नंबर था इन द बिगिनिंग, इट वाज ट्रेंडिंग एट अबाउट 20-25%। तो जो बीच के पैसे मांगते थे, जो बीच के लोग थे वो न्यूट्रल थे, उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहा ठीक है ओके, इफ यू वांट विल अपग्रेड बाद में, नहीं तो छोड़ देंगे। तो 20 से 25% का हमारा नंबर था, तो बड़ा हेफ्टी नंबर था
क्योंकि लेट्स से किसी भी एक कंज्यूमर स्पेस में आप किसी भी कंपनी का आरटीओ देखोगे वो 10 से 12% ही रहता है, हमारा वो डबल था नंबर। तो हमने धीरे धीरे उसको इवॉल्व करा, धीरे धीरे हमने जैसे जैसे ऑडियंस एक्सपैंड करनी हुई, ऑडियंस को समझ आना शुरू हो गया, प्रोडक्ट समझ आना शुरू हो गया, तो वो नंबर वो 25% का रह गया 10%, और फिर 10% से आज अगर मैं अपने बिजनेस में देखूं उसका नंबर है सिर्फ 2% का। 2% इज एडजस्टेबल, विच इज नथिंग, विच इज ओके फॉर अस ऑल्सो। नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस अ लॉट मैनी अदर प्रोडक्ट्स, तो चलता है। सो एंड इट डजंट हर्ट ऑल्सो। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था कि यार ओके, गिव यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रोडक्ट। वी वर कॉन्फिडेंट ऑन आर प्रोडक्ट कि यार हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमें प्रोडक्ट अच्छा देना है। एंड वाई वी वर सो कॉन्फिडेंट ऑन आर प्रोडक्ट वॉज दैट कि ये जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करा था हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं करा था, वी वर द फैसिलिटेटर्स। मैंने ऐसे फैसिलिटेटर्स, हमने जिस कंपनी इंटरनेशनल कंपनी से ऑयल लिया, हमारा ऑयल्स आते हैं फ्रांस, इटली, दुबई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस कंपनी से हमने ऑयल्स मंगवाए, हमने ट्रेंड्स देखे कि इंटरनेशनली कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। इसको ब्रेक डाउन करो मेरे लिए। इफ आई वर टू आस्क यू कि 5 डिसीजन बताओ, गिव मी 5 डिसीजन यू टुक which made you more than 100 crore brand in a year. Okay, so 5 decisions. Okay, first decision was product. What product you have to roll out in the market? सिंपल वॉज कि हमने बोला कि यार ओके, ये 4 ट्रेंड 5 ट्रेंड इंटरनेशनली चल रहे हैं, इन ट्रेंड को पकड़ो, इनके फ्रेग्रेंसेस बनाएंगे। लेट्स से इंडिया में एक्वेटिक फ्रेग्रेंस चलता ही चलता है, क्योंकि ह्यूमिड वेदर है, हॉट वेदर है, तो एक्वेटिक फ्रेग्रेंस तो हमारे 1 या 2 रखेंगे ही रखेंगे हम। दूसरा हमें समझ आया कि इंडिया में स्वीट फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है, हैवी स्मोकी फ्रेग्रेंसेस इंडिया में पसंद नहीं आती लोगों को, क्योंकि लोगों को एक तो लेट्स से टू मच ऑफ फ्रेग्रेंस समटाइम्स हर्ट्स ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो हमने कहा थोड़ा लाइटर स्वीटर नोट्स पे ही रखेंगे। और इंडिया में मेन एंड वुमेन में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ वुमेन nowadays prefer unisex men fragrances rather than using those typical fruity floral fragrances. तो हमने कहा हम ऐसे ही fragrances रखेंगे, and that's how it is. Then another insight on the product was कि यार okay, for example for women, rose is more prevalent in the north and let's say jasmine is more prevalent in the south. Can we create those 2 segments also in our product? So हमने वैसे भी हमने सोचा। So simple decision was कि हर product जो हमने 14 variations, जो 14 product बनाए शुरू के initially, उसके हमने सबके 4 वेरिएशंस बनाए। मैंने से 4 वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल ओके, वन प्रोडक्ट हैज़ सिनेमन, डेट्स एंड नट्स। तो किसी में हमने सिनेमन तेज करा, किसी में डेट को इंक्रीज करा, और किसी में नट्स को इंक्रीज करा, कि कौन सा वो पैटर्न है जो कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। हमें ये पता था ये तीनों प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, बट इसका क्या मिक्सचर आइडल होना चाहिए वो हमने कंज्यूमर से ही टेस्ट करवाया। सो हमने 4 वेरिएशन बनाए। वी हायर्ड अ लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। हम उन सब बच्चों को हमने बोला, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर की सड़कों पे भेजा, उनके साथ हम लोग गए। तो इनिशियल जो 14 फ्रेग्रेंसेस थी, 13,862 लोग, 13,862 पीपल टू बी प्रिसाइज, टेस्टेड दोज फ्रेग्रेंसेस। जिस फ्रेग्रेंस को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो हमने 14 फ्रेग्रेंसेस में डाल के लॉन्च कर दिया। सो दैट वाज अ सिंपल फंडा। दैट वाज द फर्स्ट डिसीजन कि यार प्रोडक्ट सही होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन अ प्रोडक्ट, तो आप पहला सेल तो ला दोगे, आप रिपीट नहीं ले पाए के आओगे। सेकेंड वॉज सॉल्विंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया कि 399 से हमने वो मार्केटिंग प्रोपोजिशन सॉल्व करा। थर्ड वॉज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन हमारा ऐसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कि लेट्स से वाइल अमेजॉन गिव्स यू अ 1 day डिलीवरी और अ लेट्स से same day डिलीवरी, कैन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम थ्रू आवर सप्लाई चेन। दुर्गेश हु इज माई फेलो को फाउंडर, तो ही कम्स फ्रॉम अ सप्लाई चेन बैकग्राउंड, तो ही हैड ऑल दोज कनेक्ट्स कि कौन सा पार्टनर किस रीजन में किस टाइम पे डिलीवरी कर सकता है। तो हमने वो पार्टनर उठाए, उस पार्टनर को पकड़ के उस ऑर्डर के हिसाब से प्रोसेसिंग करना शुरू करा। आज अगर मैं देखूं तो मेरा लेट्स से इफ़ आई गेट एन ऑर्डर ऑन अ डेली बेसिस, जो शाम 6 बजे तक के ऑर्डर्स होते हैं, लेट्स से आई एम ऑपरेटिंग, तो शाम 6 बजे तक के ऑर्डर्स सेम डे प्रोसेस होके निकल जाता है मेरे यहाँ से। अच्छा। सो वी हैव दैट थिंग। और नाउ वी हैव warehouses across India. It's not limited to Gurgaon, but we are there in Bombay, Bangalore, Kolkata, let's say smaller cities like let's say Jaipur, Lucknow as well. तो हमने हर जगह warehouse we have now, so that we are catering to that region and we follow that 1 day 2 day delivery patterns like what Amazon and Flipkart does. तो वहाँ पे करा, and then we started expanding on marketplaces. Third was choosing the right partner in terms of scaling your expansion. When I say scaling your expansion, production की expansion. The sales distribution. Sales distribution. So sales distribution में the product funda was simple. Okay, can you focus on let's say 2 platforms to begin with? Our initial 2 platforms were simple. It was Amazon and Myntra to be precise. कि यार ये 2 partners पकड़ के करेंगे because these
दे गिव यू अ पोजिशनिंग ऑल्सो इन द मार्केट की प्रीमियम प्रोडक्ट है, पैकेजिंग अच्छा है, सो दे गिव यू दैट पोजिशनिंग. सो दैट वॉज द फोर्थ डिसीजन which we took. And the last one was dissemination in terms of where do we market. One was marketing on the website, and where do we market on Amazon and Myntra was the fifth decision which we took in terms of pushing that product out of our warehouse. I think these were 4-5 decisions which we ended up taking, and with God's grace, I think we have been able to put all let's say things into place, and that's why we saw that, let's say, growth also coming in. Was there any decision that like you had an opposition to कि ये वाला नहीं करना है, and in the end it just flew? I think there are a lot, to be very honest. वो हम बहुत बार करते रहते हैं कि यार Share a couple of them. so example, for example, in the beginning, जैसे हम जब कुछ प्लेटफॉर्म्स पे लाइव जा रहे थे तो वहाँ लिस्टिंग फीस होती हैं, यू हैव टू पे लिस्टिंग फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हम स्केप्टिकल थे यार, दें या ना दें, फंड्स लिमिटेड थे टू बिगिन विद, कैसे करें. बट आई थिंक देयर वर दोज डिसीजंस वर राइट. जैसे क्विक कॉमर्स पे वी हैड टू पे अ लिस्टिंग फी, बट वी न्यू कि क्विक कॉमर्स पहले दिन रिजल्ट नहीं देगा, बट लेट्स से 3 months फ्रॉम नाउ विल गिव यू दोज रिटर्न्स. सो वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल Blinkit had this model, while I had all those connections which I would have used, but I literally, because they also have their processes to onboard a new brand. तो उन्होंने बोला कि यार रजत, वी कुड हैव डन दैट अगर यहाँ से 2 साल पहले होता, बट नाउ देयर द प्रोसेसेस हैव चेंज. फॉर एग्जाम्पल Blinkit पोस्ट IPO दे हैव देयर ओन प्रोसेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दे सेड कि ओके फॉलो दिस प्रोसेस, विल मेक श्योर कि ये इस प्रोसेस में आप आ जाओ. तो Blinkit पे ऑनबोर्ड करा. वी स्टार्टेड विद दिल्ली NCR ओनली एज अ रीजन. थोड़ा बहुत सप्लाई करना शुरू करा, एंड नाउ टुडे प्रॉबेबली Blinkit इज़ द लार्जेस्ट चैनल फॉर अस इन टर्म्स ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, अपार्ट फ्रॉम माई वेबसाइट फॉर श्योर. बट डिसीजन सही था उस टाइम पे कि यार छोटे से शुरू करना है. वाइल आई वॉज स्केप्टिकल कि नहीं यार थोड़ा होने देते हैं, देन आई गो बैक टू देम एंड से कि यार बिजनेस अब बड़ा हो गया, अब आप सीधा मेरे को ऑन बोर्ड करो. नॉट, बट आई टुक दैट डिसीजन, ठीक है यार, ओके पे सम अपफ्रंट मनी. उनका एक B2C मॉडल होता है, उसमें आप ऑन बोर्ड हो जाओ, एंड वंस द टाइम विल कम, वंस आई स्टार्ट हिटिंग अ सर्टेन नंबर, दे विल ऑटोमेटिकली कॉल मी. तो वही वाला डिसीजन हमने, आई थिंक वी टुक दैट, एंड वी एंडेड अप लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट ऑन इन दिल्ली NCR मार्केट. सेम Zepto में हमने करा. वी एंडेड अप पेइंग let's say a certain fees, and I think they have this model. I would recommend anyone who is, let's say, watching this podcast. So agar, let's say, if they are asking for something, I think you should invest that money. It's an investment for you. Okay. Like It'll push the product. हाँ, like it used to happen पहले. Modern trade chains होती थी, वो listing fees मांगती थी. That's how it is. So it's part and parcel of business. It's like an investment. It's a marketing investment which you are doing. तो आप करो and you will get that result यार. So I think the one thing which actually worked very well for us was that Blinkit, let's say, thing, and हमने Blinkit पे scale करना शुरू करा, and now I can proudly say यार we are probably the second largest brand in the fragrance space. Wow. On Blinkit. Yeah. First one was also one which we ended up creating, but now let's say second is one, at least, and this data actually came in like couple of days back only, that we are now the second largest brand on Blinkit in terms of fragrances. So idea simple है सर कि product पे ध्यान दो. Product, let's say it's an ideal mixture of product and storytelling, marketing, और when I say storytelling/marketing, 50% आपका प्रोडक्ट प्ले करेगा, 50% आपकी मार्केटिंग. 50%. 50% आपका प्रोडक्ट करेगा, 50% मार्केटिंग करेगी. आपको तो ये बहुत रैडिकल स्टेटमेंट बोल रहे हो आप. Which is fine. No, it's a very radical statement. For even when I'm listening to it as a business person, that 50% is the game of marketing. I will say why. मार्केटिंग आपका पहला सेल करवा देगा. ठीक है. आपको पहला सेल लगाने के लिए, लेट्स से यू, ओके, हाउ डू आई पुट इट, लेट्स से आपने एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, XYZ लॉन्च करा, लेट्स से एक आपने कॉफ़ी का ब्रांड लॉन्च करा. क्या फ़र्क है आपकी कॉफ़ी में और लेट्स से अ नेस्कैफे और अ डेविडॉफ और लेट्स से अ सनराइज और अ नेक्स और अ YZ. नाउ देयर आर लॉट ऑफ B2C ब्रांड्स जो करते हैं. मैं क्यों लूँ आपकी कॉफ़ी? लेट्स से आप भी बोलोगे भाई मैं एज अ फाउंडर, लेट्स से यू आर अ फाउंडर, आप बोलोगे जी मैं मैंगलोर की सड़कों पे गया, मैंने वहाँ से कॉफ़ी इकट्ठी करी और मैंने आपके लिए ला के दे दिया है प्रोडक्ट. ओके, व्हाट डिफरेंशिएट्स? ओके, ये तो था ही, बट इससे लेट्स से दिस गिव्स यू एन एडेड बेनिफिट, दैट इज मार्केटिंग. If you're a new brand, if somebody is a new brand and nobody knows them, और उसको 10 लाख रुपए दिए जाए, वो पहले 1 लाख किस पे लगाएगा?
किस पे लगाने चाहिए? आई थिंक प्रोडक्ट। पहले 1 लाख रुपए प्रोडक्ट की रिसर्च पे कि यार प्रोडक्ट क्या है बनाना है, क्या प्रोडक्ट इस मार्केट के लिए फिट है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स से यू कैन अप क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, कॉफ़ी से मैं ज़्यादा अपने आप को रिलेट करता हूँ क्योंकि आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी माई सेल्फ। आज चाय पी रहे हो? आज मैं चाय पी रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह से चाइनीज पी, इसलिए आई एम ड्रिंकिंग चाय। सो आई एम अ वेरी गुड, आई एम मतलब आई विल नॉट से आई एम अ कनोजर ऑफ कॉफ़ी, बट आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफ़ी। सो अब आप देखो नेस्प्रेसो की जो मशीन आते हैं, जो शॉट्स आते हैं, नेस्प्रेसो आते हैं, तो वो अभी इंडिया में कल्चर नहीं है, बट व्हेन यू लुक एट इन द वेस्ट, यूएस, यूके एक्सेट्रा, इट इज क्वाइट कॉमन। इंडिया में अडेप्टेबिलिटी अब आ रही है। कैसे अडेप्टेबिलिटी आ रही है आपने नोटिस नहीं करा होगा, बट इट इज वन सिंपल नोटिस। लेट्स से व्हेन यू गो टू 5 स्टार्स में होटल्स में जाओ, machines पड़ी होती हैं। दे हैव केप्ट स्टार्टेड कीपिंग इट नाउ इन Machines होटल पड़ी रूम्स। होती हैं और उसके फ्लेवर्स भी पड़े होते हैं। यस, सो दैट्स द सिंपल फंडा कि आप कंज्यूमर स्पेस में कंज्यूमर को आप उस चीज़ से रिलेटेबिलिटी बनाने के लिए आप उसकी, जहाँ वो अपना टाइम स्पेंड करता है, जहाँ वो लग्जरी पे अपना टाइम स्पेंड करता है, वहाँ आप अपना उसको प्लेस करना शुरू कर दिया। आई स्टिल रिमेंबर 2022 में लेट्स से फॉर दोज पॉड्स, जो छोटे वाले पॉड्स आते हैं, उसका इंडिया में लेट्स से 100% इफ आई लुक एट कॉफ़ी मार्केट, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज लेस देन 0.5% इन 2023-24, एक्चुअली 23-24 की बात है ये, मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज आई यूज टू मीट अमेजॉन गाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 19% पे है। व्हाट? हाँ, तो आपको लगता है कि लोग कंज्यूम नहीं करते पॉड्स, बट इंडिया में 19% 19% माल आज बिक रहा है पॉड्स का। और ये कहाँ से अडेप्टेबिलिटी आ रही है? लेट्स से अगेन 5 स्टार्स हैव स्टार्टेड, सो दे हैव बिकम द लार्जेस्ट कंज्यूमर कंज्यूमिंग स्पेस। अमेजॉन पे ऑर्डर्स बढ़ गए हैं आज आ रहा। तो that's how you look at it. While 80% of the people are still drinking regular coffees. Though this turns out to be an expensive product. This is expensive product, but now India has the buying capacity, so they're doing it. So that's how it is. Yeah. And when do you think the buying, this was going to be my question as well, that when you see India as a consumer market, people say that India is like consumers in India have started spending a lot of money. Yeah. You know, especially on consumables. Now this pod in itself, the figures you've given me, it's an expensive product. Yeah. I don't think a pod This is just to clarify, this is online. हाँ, online. This is only online buying. ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, बट 50 रुपए का तो है पॉड। ज़्यादा एक्चुअली 60-70 का है, क्योंकि अभी एवरेज 60-70 की है, ठीक है, विच टर्न्स आउट टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव कॉफी। मतलब दैट आल्सो एन एस्प्रेसो। 1 रुपए का आपको नेस्कैफे का सैशे मिल जाता है, वो 10 ml का 15 ml का इसमें एस्प्रेसो ही बनता है। Yes. ठीक है, तो घर में जब आप अदरवाइज कॉफी बनाते हो, इट डजंट कॉस्ट यू मोर देन 5 रुपीज। Yeah. दिस वन इज कॉस्टिंग यू 70 रुपीज। yes. ठीक है, सो नाउ द बाइंग पावर इन इंडिया इज इंक्रीज। विच आर द ईयर्स वेर यू एक्चुअली सीन दिस जंप? I think this is post-COVID era, if you look at it. Pre-COVID era, जैसे for example, if I talk about men's grooming, if I take another segment, men's grooming was booming. But post-COVID क्या हुआ कि I think when people started getting those education, तो men's grooming और women's grooming कुछ अलग चीज़ नहीं है. It is one and the same thing. Let's say I end up using a lot of my wife's product also today. मैं अपने लिए ये नहीं है कि मैं अलग से मेंस फेस वॉश मंगवाता हूँ, मैं सेम ही फेस वॉश यूज़ कर लेता हूँ. सो आई थिंक दैट्स हाउ द एक्सपेंशन हैज स्टार्टेड टू हैपन. नाउ व्हेन आई एम नॉट बाइंग अनदर प्रोडक्ट, आई एम यूजिंग द सेम प्रोडक्ट. सो मैं कहता हूँ ठीक है यार, तू 200 का फेस वॉश लेते थे, आज 500 का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही तो यूज़ करना है. एंड आई हैव in which is spending power of Indians have been increasing year on year. Post COVID era में I think when you look at larger businesses, a lot of, let's say, people who were doing businesses outside, they have come back to India looking at how situations have changed. They've ended up launching a lot of startups. Now when you look at startup in the consumer space, post COVID या during COVID आपने देखा होगा एक boom आया है एकदम Indian space में. इंडियन ब्रांड्स, इंडियन कंज्यूमेबल ब्रांड्स बहुत बढ़ गए. Yes. तो एक एरा था जब कंज्यूमर को लगता था कि नहीं यार, मेरे को एक इंटरनेशनल ब्रांड ही लेना है. Now if I give you, let's say, a brand of a similar quality at let's say at a lesser price point, so I'll end up buying that product na, for sure. Even at the same price point, you look at this na, there is Starbucks. हम लोगों को Starbucks का शौक था, but now you see there is Blue Tokai, there is Third Wave, there are many more, and they are doing phenomenally well. अब तो ये हो गया सर, अब तो there is another leg which has come in, which is local, let's say, giving coffee at a, let's say, at a lesser price. For example, I'm not sure if you have
seen one. There is one in your building which is called as Let's Coffee. या let's हाँ, coffee. so ये 100 रुपए से 89 rupees 89 से 89 से शुरू कर देते हैं. There is another one brand called as Up Coffee, AB Coffee. AB Coffee, yes, I know. So they also start at 89. There is one. सब हमारे co-working में आ चुके हैं. हाँ, so there is another chain down. Beanly हो गया है. There is another chain down south and I like their business. I happen to meet those founders. उनका बहुत ही बढ़िया business है कॉफ़ी का. So you have those delivery trucks जो आता है टाटा एस छोटा हाथी, that's how they call them. उसके ऊपर they have created a small coffee shop. Okay. It's a movable coffee shop. तो उनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि यार वो एक जगह के स्टेशन कर देते हैं अपना वो बेस. लेट्स से बैंगलोर में वेरी फेमस स्ट्रीट एमजी रोड, वहाँ पे वो सिचुएटेड है. आप ऑफिस जा रहे हो एमजी रोड से, आपने ऑर्डर प्लेस करा, यू जस्ट ग्रैब दैट कॉफी ऑन द गो. सो दैट्स हाउ लेट्स से द मार्केटिंग इकोसिस्टम आर नाउ इवॉल्विंग. और आपको वो कॉफ़ी मिलती है 89 रुपीज़ में. अब वही आप 500 रुपये का स्टारबक्स में आप लेट्स से आप अमेरिकानो पी रहे थे विच इज़ जस्ट कॉफ़ी एंड वाटर. नाउ यू एंड अप बाइंग लेट्स से एन 89. तो कंज्यूमर, हर कंज्यूमर क्या होगा, ट्राई कंज्यूमर कॉफ़ी का इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाएगा. जैसे चाय 5 रुपये की मिल जाती थी, ऐसे ही अब 5-5 रुपये में अगर कॉफ़ी मिलेगी तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा. एंड द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया इज इंडियन कंज्यूमर फटाफट, जो वेस्ट में कल्चर चल रहा होता है ना, फटाफट लेता है. अच्छा इंटरनेशनली ओ अमेरिकानो, आई विल स्टार्ट हैविंग अमेरिकानो. आज से 4-5 साल पहले कौन अमेरिकानो पीता था या ऐसे एस्प्रेसो पीता था? ऑल ऑफ अ सडन परफ्यूम भी कोई नहीं लगाता था. सो दैट्स हाउ इट इज. सो आई थिंक दैट्स हाउ लेट्स से कंज्यूमर्स आर आल्सो नाउ शिफ्टिंग. दे आर गेटिंग एजुकेटेड एंड दे नाउ वांट टू लिव अ लाइफस्टाइल व्हिच इज अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल. तो दे स्टार्ट spending a lot on those aspects. Rajat, when you scale a business, say एक 10 करोड़ का बिजनेस, एक 100 करोड़ के बिजनेस में फ़र्क होता है. What breaks first when you're scaling? I think काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं. As I was mentioning earlier, को while you start any business, so reaching a 1 crore or 2 crore mark is not that difficult, honestly. It's not difficult. It is basically you are creating a position for yourself in that space. Example देता हूँ, how do I look at it? एक Amazon का एक बहुत अच्छा टूल आता है Helium 10 करके. उस पे जाओ, आप देखो कि इंटरनेशनली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं. इंडिया, US, UK, UAE, हर कंट्री का दे गिव यू ट्रेंड्स. वो बताता है कि ओके उस कैटेगरी में आपके कितने प्लेयर्स हैं उस कंट्री में, और वो प्लेयर्स कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं. लेट्स से मैं एक ऐसी एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ आपको. व्हाट डू यू थिंक कैंडल का मार्केट साइज कितना होगा इंडिया में? कैंडल्स रेगुलर कैंडल्स का, एनी कैंडल, एनी सॉर्ट ऑफ कैंडल्स इंडिया में कितना होगा? 1000 करोड़. मैं इट्स पेक्ड, मैं अगर मैं अनऑर्गेनाइज मार्केट को भी ले लूँ तो लेट्स से 1500 करोड़ के आसपास मोटा मोटा होगा. यूएस में Amazon.com पे सेंटेड कैंडल्स का महीने का मार्केट इज अबाउट 800 करोड़. व्हाट? 800 करोड़ इज व्हाट दे टिपिकली सेल कैंडल्स. एक ब्रांड है बहुत छोटा तो नहीं, अब तो काफ़ी बड़ा ब्रांड हो गया है, यांकी कैंडल्स करके. वो सिर्फ सेंटेड कैंडल्स बनाता है, जैसे आपको मिनीसो वगैरह में मिलती हैं. वो देते हैं अबाउट $10 के आसपास. दे आर डूइंग अबाउट $500 million अ ईयर ओनली ऑन Amazon. तो दैट्स हाउ द मार्केट इवॉल्व्स. अब मार्केट ये सारा डेटा का मिलता है जो मैंने आपको बताया Helium 10 जैसे टूल पे. दैट यू एंड अप रिसर्चिंग अबाउट द प्रोडक्ट, और वो कितना प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन करता है, यू गेट दैट नॉलेज. तो आप वही मैं बताया कि आपने प्रोडक्ट ले लोगे वहाँ से कि क्या बनाना है, उसका मार्केट कितना है, तो उसमें आपने बस लेट्स से कि 10 प्रोडक्ट 100 रुपये का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर आप 11वां इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आप 9 रुपये पे तो आप इजीली जंप कर सकते हो, क्योंकि सबका 10% शेयर भी खाओगे तो आप 9 रुपये पे आ गए. 10 करोड़ करना आसान है. पहले 1 करोड़ करना, पहले 1 करोड़ करना आसान है. फिर 1 करोड़ से जो 5 करोड़ या 6 करोड़ की जर्नी है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि तब आप एंटर तो कर गए मार्केट में, बट अब क्या, क्योंकि जो 8-10 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है उसने टाइम लगा के 8-10 करोड़ कर रहा है. अब कैसे आगे बढ़ोगे? तो देन यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, यू ट्राई टू ब्रिंग इनोवेशंस इन द मार्केट एक्सेट्रा एंड दैट्स हाउ यू जंप फ्रॉम लेट्स से 1 करोड़ टू 6-7 करोड़ का मार्क. नाउ योर जर्नी, सब हम मंथली बात कर रहे हैं, हम सब मंथली बात कर रहे हैं. जब आप 6-7 करोड़ पे पहुंच गए लेट्स से इन अबाउट 6 months, then you know from a 7 crore let's say to a 15 crore journey is again easy. क्योंकि क्या आप सिर्फ पेनिट्रेट करते जाओगे इस मार्केट में, आप लोगे बाकी क्या हो गया, बाकियों के बराबर आ गए. आपने एक अच्छा आपका मार्केटिंग कैंपेन हिट हुआ मार्केट में, आपने दूसरे का शेयर ऑफ पाई फटाफट ले लिया. तो नाउ यू अचीव दैट 7 crore to 15 crore का मार्क, एंड अगेन देन 15 to let's say 30 crore की जर्नी इज डिफिकल्ट. देन यू हैव टू थिंक यार व्हाट नेक्स्ट.
कि लेट्स से इफ आई एम डूइंग फ्रेग्रेंसेस टुडे, डू आई नीड टू लॉन्च लेट्स से बॉडी वॉशेस, मेरे को कैंडल्स लॉन्च करना है, मेरे को रोल ऑन्स लॉन्च करना है, मेरे को लेट्स से सोप्स लॉन्च करना है, तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फ्रेग्रेंस, शुड आई लॉन्च ऑल दोज प्रोडक्ट्स अंडर माई पोर्टफोलियो सो दैट मेरा कैटेगरी एक्सपेंशन हो. अगर कैटेगरी एक्सपेंशन नहीं होगा तो मैं सेम कैटेगरी में ग्रो करना मेरे लिए डिफिकल्ट होता जाएगा. ना वंस यू स्टार्ट एक्सपैंडिंग योरसेल्फ, तो क्या हुआ, कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने देखा अच्छा यार ये बंदा तो कैंडल भी देता है, ये बंदा सोप भी देता है, तो मैं ये दो चीज़ें और ले लेता हूँ, तो आपने AOV ड्राइव कर दी उस कंज्यूमर की. तो कंज्यूमर ने पहले जो लेट्स से 800 रुपये का सामान ले रहा था आपसे, अब वो 1200 का सामान ले रहा है. बढ़ गया. तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होना शुरू हो गया. So that's how, let's say, the journey of 15 to 30 crore happens. And once you cross 30 crores, and then let's say you started expanding yourselves to international markets, etc., and then the sky is the limit. तो फिर तो आपकी वही गेम है, आपने सेम स्टोरी रिपीट करी उस कंट्री में, छोटे से स्टार्ट करा, धीरे 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 करके एक्सपैंड करते जाए. Today where you are, if say somebody comes and says कि ये 100 करोड़ ले लो, इन्वेस्ट कर लो कंपनी में, मुझे शेयर दे दो, आपके पास 100 करोड़ कैश आ गए, कहाँ पे आप 1 रुपया भी नहीं लगाओगे? कहाँ पे मैं 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा? एक्चुअली 100 करोड़ आते मैं तो बहुत जगह पैसा यूज़ कर लूँगा, बट आप बोलो यार यहाँ नहीं लगाना बिल्कुल भी. हाँ, एक्चुअली मैं ऐसा कोई एस्पेक्ट बचेगा नहीं. वंस यू हैव दैट मनी प्रॉब्ली यू विल एंड अप थिंकिंग कि यार ओके आई विल स्पेंड अक्रॉस, बट आई विल नॉट से कि आई विल नॉट स्पेंड, बट आई विल डू सेंसिबल स्पेंडिंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से डू सेंसिबल स्पेंडिंग, आई विल नॉट एंड अप टेकिंग लेट्स से अ स्पॉन्सरशिप ऑन अ लेट्स से अ क्रिकेटिंग इवेंट, कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज या इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रही है, उसका 5 करोड़ का पैकेज है, मैं ले लूँ, या मैं लेट्स से कॉफी विद करण चल रहा है, उसका 20 करोड़ का पैकेज है, मैं ले लूँ. वो नहीं करूँगा, इज व्हाट आई फील. सो आई विल प्रॉब्ली इन्वेस्ट इन द राइटफुल मैनर कि यार ओके आई विल डू मे बी लेट्स से 5 स्मॉलर इवेंट्स जिनका शायद बजट 5 करोड़ का होगा, बट वो 5 करोड़ मैं अलग अलग TG को कैटर करूँगा. दैट्स व्हाट आई विल डू. आई विल नॉट स्पेंड लेट्स से हैंडफुल अमाउंट ऑन वन इवेंट rather than spending that handful amount. I'll spread it across let's say 5-6 events. And your earlier 5 pillars that you spoke about कि product पे इतना time, इतना marketing में, इतना supply chain में, वो सब same रहेंगे या कुछ add करोगे? No, I think proportion will not change. I will say on the discoverability side of the product, sir, हमारा let's say if you look at fragrances is nothing but one ingredient which is oil. बाकी तो alcohol और water होता है उसमें. So ऑयल की लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन, ऑयल की क्वालिटी, हाउ डू वी कीप इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ फोकस. तो प्रोडक्ट में क्या हम इनोवेशन ला सकते हैं विच विल एक्साइट कंज्यूमर टू बाय मोर फ्रॉम अस, इज व्हाट वी डू. अनदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस गिफ्ट सेट्स जो हमने लॉन्च करे थे. अब उस गिफ्ट सेट्स का क्या लॉजिक है कि वो गिफ्ट सेट्स जैसे मैंने आपको बताया सारी दुनिया एक टाइप पैटर्न में कर रही थी. हमने कहा यार हम सेम पैटर्न नहीं करेंगे, विल डू समथिंग डिफरेंट. सो हमने क्या करा, हमने 3x30 ml बना दिया. मार्केट 4x20 ml पे चल रही है, 80 ml पे हमने कहा 3x30 देंगे, और साथ में हमने दे दिया एक बॉक्स, वुडन बॉक्स, जो कि वो बाद में यूज़ कर सकते हैं. तो हमने सिंपल रखा कि यार ओके इट इज़ अ रीयूजेबल बॉक्स. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंज्यूमर के दिमाग में हमेशा रहेगा कि BBB उसके घर में पड़ा हुआ है, रिकॉल वैल्यू. तो वो हमने वुडन बॉक्स बनाया. वुमेन कैन कीप लेट्स से क्लचेस, रबर बैंड्स एक्सेट्रा. गाय कैन कीप लेट्स से वॉचेस, सन ग्लासेस एक्सेट्रा. तो हमने लॉन्च कर दिया उस हिसाब से. आई थिंक दैट्स हाउ वी लुक एट इट. नाउ हैव यू आल्सो सीन और you must have researched, your team must have researched that there were people who used to only buy international perfumes. ये 20-25 हज़ार 30 हज़ार वाले परफ्यूम खरीदने की जिनकी आदत थी, but they've also started buying yours. They do. So we end up speaking to a lot of customers. I'll not say 20-25 हज़ार वाले. Let's say someone buying a 5,000-7,000 rupee perfume. Okay. They end up buying our fragrances. वो क्यों लेते हैं? Because they enjoy the product. We'll give you let's say a similar let's say longevity slash projection while what a 10,000 rupee or a 8,000 rupee product will give. Because we know कि हमारा प्रोडक्ट में दम है, and that's how we are very confident on that. तो ऐसा नहीं है कि 20,000 वाला, you will be quite surprised, I get orders from camellias as well. So हमने camellias में भी और magnolias में भी ऑर्डर डिलीवर करे हैं. वो तो 20-30 हज़ार वाला ही है. हाँ. So अब I'm assuming if they are buying if they can afford a camellias, they end up buying our product. So I'm assuming they buy a 20,000 rupee product as well. Sure. But they are buying let's say our product as well. So कहीं ना कहीं I think for us also we have been able to create that mark
कि यार ओके a bigger person who has achieved something great in his life, he's ending up buying our product. Because I think one, there is a word of mouth which is spreading very fast. And I think secondly, we are not tapping into, let's say, that guy who is the owner of that family. I'm tapping to his son or let's say his daughter कि यार वो मेरा माल खरीदे, because they are the Gen Zs and they are the future makers in India. अभी I was actually reading an article, I think I was reading an article about Nescafe actually. एक कोई तो डॉक्यूमेंट्री आई थी, and then I read about it on the internet. What they did was in Japan. Japan was never a coffee consuming market. So Japan coffee consume नहीं करता था, but what they did was about 20 years back, उन्होंने कॉफ़ी की टॉफ़ी लॉन्च करी इन Coffee जापान. toffee, okay. यस. अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि 20 साल बाद जब ये बच्चा जो कॉफ़ी खा रहा है ये बड़ा तो होगा, अब उसको इतनी आदत आदत पड़ डाल दो जाएगी। कि वो कॉफ़ी कंज्यूम कर ले. एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि दे हैड दैट लॉन्ग विजन कि 20 साल बाद आई वॉन्ट टू चेंज दैट ट्रेंड. नाउ जापान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉफ़ी कंज्यूमर कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड. जो 20 साल पहले उन्होंने, लेट्स से दे पुट इट दैट एफर्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट टॉफ़ी, taking an unconventional route, that is now reaping them results. So I think that's how you should always look at it. So probably, let's say, brands who are selling fragrances, our objective is कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव है जो 500-600 रुपये का परफ्यूम लेता है, क्या मैं उसको एक बेटर क्वालिटी दे सकता हूँ 1000 में. और लेट्स से फ्रॉम दिस स्पेस दे माइट प्रोग्रेस टू अ 2000-3000 रुपी फ्रेगरेंस. बाय दैट टाइम हो सकता है मैं भी अपने कुछ और प्रोडक्ट लॉन्चेस कर दूँ उस रेंज में, बट कंज्यूमर को एक बेस मिल गया. अगेन वो पहले वाला बेस भी बहुत ज़्यादा है, बीच वाला स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, और आगे वाला स्पेस तो बढ़ता ही रहेगा. एंड दैट्स हाउ कंज्यूमर स्पेस इंक्रीजेज. फॉर एग्जांपल इंडिया में आज मैं अगर पूरा फ्रेग्रेंस मार्केट देखूँ तो 10,000 करोड़ की है इंडिया में. वो 10,000 करोड़ आज से जब हमने बेलावीटा में था वो शायद 5,000-6,000 करोड़ की थी. वो ऑटोमेटिकली 4 साल में वो 10,000 करोड़ पे पहुंच गई है, 11,000 करोड़ पे पहुंच गई है. अब ना व्हेन यू गो टू यूएस पे Amazon.com पे ये मार्केट साइज 50,000 करोड़ साल का. ओह माय गॉड. तो आप बात कर रहे हो 5x ऑन वन प्लेटफॉर्म. तो हमें पता है कि यार इतना, और इंडिया जिस हिसाब से लेट्स से वी लुक एट हाउ यूएस एंड यूके आर मूविंग, दे विल क्विकली अडेप्ट टू दिस फेज, एंड वो 10,000 की कैटेगरी का 50,000 करोड़ में बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ अबाउट 3 years or 2 years from now. 3 years or 2 years from now, it will be I think- 5x. Yes, it will be 5x is what we are anticipating. एक साल में डबल हो रही है. इस साल जो मेरे को लग रहा है इस साल का भी ट्रेंड, दे आर ट्रेंडिंग एट अबाउट एडिंग अनदर 5,000 odd crores. मेरे को लग रहा है बाय एंड ऑफ दिस ईयर we'll be trending at about 15,000 crores. I think one big shout out by one of the brands in India, it will disrupt. Okay. So Shout the- out means When I say one big marketing campaign, कुछ भी अच्छा, blew एक up, बड़ा. एक बड़ा कुछ blew up हो जाए. Let's say, I don't know, just for the sake of putting it, let's say tomorrow, let's say a Virat Kohli or an MS Dhoni or an XYZ player comes and say कि okay, this is my brand and this is what I want to do, and you do it. एक campaign blew up हुआ, and then the but lot category of exploded. Bollywood actors and actresses, do they have their Of course they perfume do. brands? They do have. Do they do well? Honestly इतना नहीं है, because you tend to get that data and it's a readily market data which is available, that let's say some brands have done exceptionally well. Fragrances में तो there are very limited set of players who have entered, but let's say now when I look at skincare category, so M Caffeine, which is let's say उसका एक product है Hyphen, which is run by कृति सैनन, तो काफ़ी अच्छा कर रहा है. दे डू अबाउट 500-600 crores a year Wow. now. So but बहुत सारे ब्रांड्स हैं which popped up in the परफ्यूम middle. में एसआर के था, आई थिंक सलमान का भी आया, काफी के आए थे. वो बहुत पहले आए. मतलब आप वो देखोगे, इट वाज एक्चुअली टाइम फ्रेम व्हेन इवन Timing ठीक नहीं था वो. एक्चुअली वो कोविड टाइम या कोविड से पहले वाला टाइम फ्रेम था. कोविड के बाद तो हार्डली आई वुड हैव सीन 1 or 2, लेट्स से अभी इन द रीसेंट टाइम्स अ लॉट ऑफ celebrities have ended up, I would say YouTubers have ended up launching. I think Ashish Chanchalani launched one fragrance yeah. brand. I think abhi Harsh Beriwal also launched one brand called as Octopus, is what I remember. Then there are a bunch of other brands. Beech mein Rashmika Mandana also launched one brand called as Dear Diary or something ऐसा ही कुछ था. So but I would say कि यार One big shout out. one big campaign by one, let's say, celebrity, it will blow up the market, and it is good for everyone.
I don't want to spend that money. Let's anyone else spend that money. We'll capitalize on that. So that's how it is. Now, tell me one thing. In this journey, while Blably Blue, I'm talking, anywhere there was a night जब आप रात को सो रहे होगे और आपको लगे यार ये चलेगा नहीं. बहुत बार होता है सर. while we launch a lot of campaigns at our levels, a lot of times we think यार ये चलेगा नहीं. For example, we ended up launching a product which is still running as we speak. It's basically a concept which we have tried to sell. The challenging part in India is education. इंडिया को एजुकेट करके किसी कंज्यूमर हैबिट पे शिफ्ट करना इज अ टास्क. It's very expensive. Yeah, so you have to spend a lot of money. So we ended up creating this product which is called as 2 cents. So it is basically आप सेम प्रोडक्ट का पहले ऑयल लगाओ और उस पर फिर स्प्रे कर दो. योर लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन विल इंक्रीज मल्टीफोल्ड्स. Now we ended up launching that product. We spent a decent money also, but somehow that product has not kicked in. दुबई में बहुत चलता है. नहीं तो जैसे आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर बिलो एंड देन यू पुट अ फ्रेग्रेंस, इट विल ब्लो अप. हमने कहा आप सेम ऑयल ही लगाओ एंड पुट द फ्रेग्रेंस, लेट्स से परफ्यूम ऑन टॉप ऑफ इट, इट विल एक्सपैंड. बट टू आवर सरप्राइज वो इतना पिकअप नहीं करा. वेल वी आर स्टिल पुशिंग दैट प्रोडक्ट, बट आई थिंक वो एजुकेशन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बाकी ब्रांड्स और आएंगे तो शायद इंडिया इवॉल्व हो जाए. आई थिंक विद अ लॉट ऑफ परफ्यूम क्रिएटर्स नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. आई थिंक इट विल, इंडिया इज स्टिल ऑन दैट लर्निंग फेज. टाइम लगेगा एंड वी आर ऑल्सो लर्निंग बाय दैट. सो वी आर नॉट, लेट्स से, पॉजिंग दैट प्रोडक्ट, बट वी आर ऑल्सो वेटिंग कि धीरे धीरे ही बढ़ने देते हैं. As a founder, do you know that anything that you speak on social media or any other platform where you may go as a successful founder, is everything is taken seriously? यार, Are you aware of this? Honestly, मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम अ सक्सेसफुल गाय राइट नाउ. आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न. But from the other perspective, No, I think I keep on meeting a lot of, let's say, young founders. Let's say, because of my prior experience across multiple categories and multiple brands, तो a lot of people keep on approaching कि आप ये बता दो, X बता दो. I think some people take it seriously, some people don't. So ठीक है, जिसको फ़ायदा मिल रहा है, they keep doing their stuff. I'm happy to help is what I always say कि यार okay, I'll help a new startup guy कि यार ठीक है, okay, how do you use your capital wisely? I can help on that. बाकी मर्जी है सर. India is a free democratic country. So that's how I look at it. LinkedIn is a big platform for professional founders and all of that. What is one thing you will talk about LinkedIn कि ये LinkedIn पे बहुत सेलिब्रेट होती है मगर एक्चुअली में फेल हो जाती है, चलती नहीं बात. For example, I don't put many posts, to be honest, on LinkedIn, but I think sometimes I feel excessive gyan on LinkedIn doesn't work out. People are smart enough with Gen AI coming into the picture. People end up talking to Gen AI and then they get a lot of results and answers. मेरे को लगता है कि LinkedIn पे कई बार too much of ज्ञान, which I also keep sharing, sometimes I feel it is not worth it for consumers. So that's how I look at it. ऐसा कुछ है नहीं hard and fast rule, but somehow this is my personal thought कि मेरे को लगता है कई बार होता नहीं है अच्छा. Now for a perfume brand, now I consider perfume as a luxury, cosmetics, इसमें सब कुछ आ जाता है. उनके लिए what is 2 solid marketing tips you can give? No, I think marketing 2 tips simple है, which I talked about, product and the marketing strategy with which you want to launch. Product में दम होना चाहिए. Until unless you as a brand owner are confident on your product, don't launch that product. उसको टेस्ट कराओ पहले अपने friends and family से, get that tested, then go out in the market, get that tested, and then launch that product. And second is what marketing campaign you want to launch that product with. If you're doing a regular communication which everyone else is doing, you will not succeed. Do something different is what you have For to. example, what everybody else is doing. So for example, जैसे हमने करा 399 वाला strategy, that you end up you basically break that barrier of consumer buying your product. जब आपने वो break कर दिया, now when I look at it, a lot of brands have started doing the same कि हमारे space में जो नहीं आ रहा है वो same कर रहा है. They're trying to, let's say, replicate that bit, which is fine. Probably if we were, let's say, we created that strategy, let everyone try it. But it might vary from category to category.
It might change from, let's say, people to people, but I think that's how it moves, is what I feel. हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली बीच में कि इफ इन इंडिया यू गो आउट एजुकेटिंग द कंज्यूमर अबाउट समथिंग न्यू तो दैट कैन टर्न आउट टू बी एक्सपेंसिव एंड मे नॉट वर्क. सो से समथिंग मोर अबाउट दिस एंड वर्सेस लॉन्चिंग समथिंग विच इज फॉर विच मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट. So there are two ways to look at it. वन, मैंने आपको जो बताया कि एक मार्केट चल रही है, कैटेगरी चल रही है, आपने उसमें एक प्रोडक्ट ले लिया, यू विल गेन शेयर ऑफ पाई विद मार्केटिंग. Yeah. वहाँ आपका प्रोडक्ट का रोल नहीं है, आपने सिमिलर या बेटर प्रोडक्ट बनाया, यू डू अ बेटर मार्केटिंग, यू विल एंड अप सक्सीडिंग. एंड यू शुड नो कि क्या वो मार्केटिंग के बेटर टेक्निक्स हैं एज अ ब्रांड ओनर. Now, when you talk about category education is very different and very difficult also. Sometimes I feel. Why I am saying that? क्योंकि it is a consumer shift which you are talking about. जब consumer को shift कराना है कि यार okay you are doing this, now you have to do this. तो उसको convince करने में it requires a lot of effort. For example, एक और छोटा सा example लेता हूँ. When a child is born, a mother buys a lot of products. आज भी let's say अगर आप देखोगे, why mother still prefer age old brands, because they have that confidence. उन्होंने टाइम लगाया है उस मार्केट में. Now there are brands, D2C brands which have popped up. वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई आई फील, आई वर्कड इन अ मदर केयर बेबी केयर कंपनी. आई फील कि यार बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी है, क्योंकि आप लेट्स से रिस्क नहीं लेगा उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेगा अपनी लाइफ का. लेट्स से इफ यू आर ट्राइंग अ प्रोडक्ट, फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट ऑन योर बेबी, यू विल नॉट डू इट. ऑन योरसेल्फ यू विल. आई जस्ट हैड अ डॉटर 2 months बैक. मैं भी सिंपल गया यार, ओके यार मार्केट में बड़ा ब्रांड कौन सा है, ओके सेटाफिल, सेबामेट, चलो यही लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना. नाउ देयर आर अदर ब्रांड्स व्हिच हैव पॉप्ड अप. आई नो अ लॉट ऑफ फाउंडर्स, दे आर कन्विंसिंग मी कि आप लो, बट माइंडसेट, क्योंकि वो ब्रांड्स उस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे अभी, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग अप इन दैट स्पेस. नाउ टुमारो लेट्स से अ ब्रांड विच कम्स अप एंड से कि यार ओके आई विल स्पेंड लेट्स से 50 crores ऑन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स कि नहीं हमारा प्रोडक्ट क्यों बेटर है, लेट्स से फ्रॉम दीज बिगर ब्रांड्स, देन कंज्यूमर शिफ्टिंग माइट हैपन. बट वही है, वो 50 crore कौन डालेगा इज द क्वेश्चन मार्क ऑन द कैटेगरी. So that's how I look at it. Let's talk about finance. Mostly startups, when people start, either the founders put in their money, or there's some seed funding when it comes from investors, friends, family, or people you may know from your network. Now, what is the most critical things a founder needs to take care of when it comes to finance? I think one, how does let's say inventory management happen? ये नहीं है कि यार okay you are starting a venture and you end up buying 6 महीने का इन्वेंट्री इकट्ठे, जब आपको पता ही नहीं है कैटेगरी कैसे मूव करता है. So you have to be very wise while you are creating a product. Let's say for example when we started Blably Blue, our simple objective was था कि हमने एक मोटा प्रोजेक्शन बनाया है कि यार हम पहले महीने में 6-8 लाख रुपए का धंधा करेंगे. अब 6-8 लाख का धंधा करेंगे, हमारे 3 ही प्रोडक्ट्स थे, 3 ट्रायल पैक्स थे. हमने कहा ठीक है 6-8 लाख का धंधा करेंगे और 3 लाख का एडिशनल माल करेंगे, मतलब 45 days की इन्वेंट्री लेके रखेंगे हम अपने लेवल पे. जब हमें लगेगा कि यार ओके पेनिट्रेशन हो गया है, मार्केट में रिस्पॉन्स आना, देन वी इन्वेस्ट अनदर 45 days के ऊपर माल. नाउ इन द करंट स्टेट इफ आई टॉक अबाउट इन अ BAU मंथ विच इज बिजनेस एज यूजुअल, वी स्टोर अप टू लेट्स से 75 days ऑफ इन्वेंट्री. हाँ वो बढ़ गया. 75 days का आप इन्वेंट्री करते हैं. अब जैसे हमारा सीजन आने वाला है, दिवाली आने वाला है, अभी रक्षाबंधन अगले महीने, और फिर क्रिसमस आएगा, फिर वैलेंटाइन आएगा. इस ड्यूरेशन में हम वो इन्वेंट्री 75 से 120 days पे ले जाते हैं. क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है कि कोई अनयूजुअल स्पाइक आ जाए. लेट्स से विद गॉड्स ग्रेस अगर रक्षाबंधन पे कोई अचानक से स्पाइक आ गया कि ऑल ऑफ अ सडन पीपल एंड अप बाइंग आवर प्रोडक्ट, बेच रहे हैं, हाँ परफ्यूम बाय होना शुरू हो गया, या क्रिसमस में सीक्रेट सेंटा चल रहा है ऑफिस में, अचानक से हमारा ही प्रोडक्ट ब्लो अप हो जाए, तो हम रेडी होने चाहिए उस चीज़ के लिए. एंड दिस यूजुअली हैपन्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड. US में भी बहुत तगड़ा होता है, इंडिया में बहुत, मतलब आई हैव सीन दैट जर्नी एट बेला वीटा. वी वर इन दैट सिचुएशन कि हम अपने प्रोडक्ट्स पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे दिवाली पे, बिकॉज वी डिडंट एंटिसिपेट दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स. 1 year प्रॉब्ली हमने उससे 1 महीना पहले शायद हमने 20 crore नंबर करा था, अगले महीने हमने अचानक से 32 crore रेवेन्यू कर दिया. सो यू डिडंट मेक अप योर माइंड नहीं कि 20 crore की इन्वेंट्री अगर 32 crore यू आर स्पेंडिंग, लेट्स से यू आर गेटिंग 70% एडिशनल रेवेन्यू व्हाइल यू हैव प्रेप्ड अप फॉर लेट्स से मे बी 100% ग्रोथ ओनली. तो और उसमें भी क्या है अनयूजुअल ट्रेंड कि कोई एक प्रोडक्ट ब्लो अप हो जाए, कि आपने 15 प्रोडक्ट बनाए,
आपने 4 प्रोडक्ट जो बनाए जिस पे आपको फोकस था, बट वो 5वां प्रोडक्ट पिकअप हो गया, एंड देन यू हैव दैट थिंग इन योर हेड, ओ हो ये क्या हो गया. सो समटाइम्स दैट वो कई बार यू फील कि यार ये कुछ हो गया, अलग से ही हो गया. अभी वी हैड आवर फर्स्ट बर्थडे सेल, हमारा हुआ जुलाई में ही. Now one of the products which we recently launched, it was actually अभी 2 महीने ही हुआ है हमारे 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हमने. एक का नाम है बिलियनर वाइब्स, एक का नाम है हबीबी, जो हमारे फ्रेगरेंसेज हैं. वन इज़ मैन एंड वन इज़ यूनिसेक्स फ्रेगरेंस. हमने उसका एक कॉम्बो बनाया, ऐसे ही बैठे हुए थे, हमने कहा इसका नाम रखते हैं द दुबई ड्रॉप, क्योंकि दोनों बिलियनर्स भी वहाँ हैं और हबीबी भी कॉमन नाम है, हमने रखा. अब हमें ये दोनों हमारे नए प्रोडक्ट्स थे, हमें नहीं पता था क्यों बिकेंगे, इतने ज़्यादा क्यों बिकेंगे. हमने थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा दिया उसको, एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट वन ऑफ द वीडियोज़ वेंट वायरल. अब वो वायरल हो गया. अब वो प्रोडक्ट इतना भागा कि हमने कभी स्टॉक ही नहीं इकट्ठा कर रखा था इतना. एंड देन वी हैड टू लिटरली शट डाउन दैट स्कीम कि बंद करो यार, ये तो कुछ अलग ही हो गया. एंड देन मे बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हमने 6 दिन में उसका इन्वेंट्री इकट्ठा करा, एंड देन वी एंडेड अप लेट्स से रीलॉन्चिंग दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेल. तो फिर वो वापस बिका. सेम चीज़ हुई, वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स ओल्ड मनी, वन ऑफ द रील वेंट वायरल. शी इज़ अ वेरी स्मॉल क्रिएटर फ्रॉम कोलकाता. मैं उससे अभी भी बात कर लेता हूँ. एंड आई ऑलवेज़ लाइक टू स्पीक टू ऑल माई पार्टनर्स जितने भी हैं, चाहे वो स्मॉल छोटा सा छोटा क्रिएटर है, बड़ा सा बड़ा क्रिएटर है, चाहे वो 10,000 फॉलोइंग वाला है या 2,000 फॉलोइंग वाला है, या वो 10 लाख या 2 मिलियन वाला फॉलोइंग वाला है, मैं सबसे बात करता हूँ. मैंने उससे बात करी, उसकी वीडियो अचानक से शी पोस्टेड दैट वीडियो बैक इन फेबररी, बट उसकी वीडियो वायरल हुई 7 अप्रैल को. 7 अप्रैल अभी, तो उसने 2 फरवरी को वीडियो डाली थी. 2 फरवरी से लेके 7 अप्रैल के बीच में उसके व्यूज़ थे आई थिंक 2300 प्लस कुछ थे, 2300 2400 के आसपास थे. 7 अप्रैल को पता नहीं कौन सा मेटा का एल्गोरिदम हिला, दैट वीडियो वेंट वायरल. वो 2300 व्यूज़ एक रात के अंदर 14 मिलियन बन गए. व्हाट? 14 मिलियन. आज उस वीडियो पे कुछ 90 मिलियन व्यूज़ हैं एज वी स्पीक. वो 7 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल का मेरे को आज भी टाइम फ्रेम याद है. हमने उस प्रोडक्ट की 40 लाख रुपए की सेल करी एडिशनल उस वीडियो की. तो वो वीडियो जब वायरल हुई, वो 2300 से वो अबाउट आई थिंक जब मैंने लास्ट चेक करा था, वो 5 या 7 दिन के गैप पे कुछ 60 मिलियन व्यूज़ पे गई थी. ऑल ऑर्गेनिक, कोई पेड पुश नहीं हमारी तरफ से. और हमारा प्रोडक्ट 40 लाख से एक्स्ट्रा सेल थ्रू हुआ. सो यू नेवर नो व्हाट विल क्लिक on the ecosystem. Very interesting. In this, do you think models have been replaced completely by influencers when it comes to the marketing game? Actually, the marketing game is about, you have to bring the true side of the product. You have to build that relatability. Let's say if I'm talking, I try to, let's say if I'm a person who is a founder of an X company, I will try to bring that authenticity by saying कि यार मैं हूँ ऐसा ही हूँ. And that's how I, let's say, project myself. I'll not faff around कि यार मैं ऐसा था. मैं जो हूँ भाई, मैं सामने ही हूँ. I think once you start communicating that thing to public, I think people will like that story always. थोड़ा सा भी आप faff around कराओगे, लोग पकड़ लेते हैं कि वो चलेगा नहीं. वो कभी भी नहीं चलेगा. That's how the market is. तो I think that's how people look at it and that's how they react to it. Rajat, every founder loves numbers. So what is that one statistic or number you look at every morning? The first thing. I think 2-3 things. One is how my revenue is, of course, moving on a day-to-day basis. Second is how my margins are playing. Margins can change every day because of the product. Let's say distribution, SKU distribution change hota hai. Third important aspect which I look at is my contribution margin to, which is CM2. Or let's say how much spend I am doing on my performance marketing. These are, let's say, the 3 basic numbers which I look every day, irrespective of whatever I do. First thing in the morning, that's the first sheet which I open कि ये तीनों में क्या चल रहा है, एंड धंधा किस प्लेटफॉर्म पे कितना हुआ है. अब जैसे वीकडेज है तो पता है कि किस दिन कैसा धंधा चलेगा. वीकेंड्स है तो और एक्साइटमेंट होता है क्योंकि धंधा भागता है. सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. Now, 20 years from now, if people to look back and look at, remember Rajat, minus Blably Blue, what do you want them to remember about you? I think one thing, and that's how I always look at it, and I always tell Durgesh and Kushal कि भाई क्या resemblance होनी चाहिए. We should be known as the perfume boys of the world. I think that's the single proposition कि
they helped create one of the largest brand, and then they created another brand. So it should be categorized as the perfume guys of the world. That's the simple statement. Wow, so great. We'll do some rapid fire. Sure. And all you have to do is agree or disagree. Okay. Okay. I'll just throw a few questions at you. D2C is harder than people think. Disagree. Okay. Building a team is harder than building a product. Disagree. Okay. AI will make branding more important, not less. Agree. Consumers forgive mistakes but never dishonesty. Sorry, can you come again? Consumers forgive mistakes but never dishonesty. Agree. Speed beats perfection. Yes, I agree. Okay. Distribution is a bigger moat than technology. I would say disagree. Okay. Revenue is vanity and cash flow is sanity. I agree, of course. Every founder eventually becomes a capital allocator. Absolutely, yes. And agree. Thank you so much, Rajat. I'm sure this will be very useful for entrepreneurs, people already in the business, and people looking at creating a business. I think thank you so much for inviting me over. I think it was a great conversation. I always love to speak to people, and there are certain areas which I always love to speak on. I think idea at the end of the day was if I come, let's say, if I do such, let's say, podcast / series, idea is that can I help other founders who are growing in that space and let them grow the business. Eventually, the simple underlying statement is that we have to take, let's say, India to a global stage. Right now, we are in that zone, Yeah. but can we become one of the largest economies of the world? That's the simple statement. Same here. That's my motto with this podcast. Yeah. Thank you so much, Rajat. Thank you, everybody. And if you like this podcast, do comment and like and share the podcast. Thank you.